Hi guys, welcome back to the Prep B. Let's see this new set. Before you watch the solution, I would recommend you to pause the video, solve the set, and also solve the set with a timer because only a 2 month, around a 2 months left for your actual exam. So I would recommend you to solve with a timer so that you should know how much time it took to solve this set. So let's try the set. I hope you guys solved the set. Let's see the solution. So it is given that KVPD is a free online encyclopedia created and edited by volunteers around the world. Significant amount of irrelevant information has been lately posted on Wikipedia. Rajesh, one of the Wikipedia enthusiasts, has written a number of computer program named bots. Okay, so there was a bots to remove irrelevant information automatically from the four section named science, language, history, and economics. So there was a bot which are there to remove the irrelevant information from the encyclopedia. Okay, or you can say Wikipedia. तो आगे क्या बोला है? On day one, the number of bots employed by him deal with science language was okay. Science history economic section. These are the bots जो कि day one पे उन्होंने बनाया था, राजेश ने जिसने बनाया था. Okay, 10 for science. Okay, let me write it here. So that is science. Let's write S L H N economy. So on day one, okay. So day one पे जो था 10 bots created, 20 bots, 30 bots and 40 bots. So I guess I have to find all the bots. Day 2 पे कितना था something. Let's see. At the beginning of day 2, he cloned a few bots from one section to the remaining three section. Okay. So day 2 पे there was change. अब उसने बॉट बनाया नहीं. Simply what he did, he cloned the bot. जो बॉट उनका क्लोन बनाया, एक सेक्शन का क्लोन बना के उसने तीन अलग अलग सेक्शन में डाला. इट मीन्स सो लेट्स से एस से अगर उसने एक बॉट्स निकाला है, लेट्स से एस में एक बॉट था ए, and if we clone the bot A, तो clone let it be A dash or A1. So these are the A1 bots. तो because बाकी सेक्शन में उसने ऐड किया, बाकी रिमेनिंग थ्री सेक्शन में मतलब तीन बॉट्स बनाए होंगे, राइट? So every one bot created three bots, three clone bot. Okay. Therefore, those bots could remove the irrelevant information from all the four sections that a bot already. Okay. ठीक है. After cloning work done, the number of bots employed to deal with the science, language, history, economic section were these number. Okay. सो क्लोनिंग हुआ तो मुझे नहीं पता कितने क्लोन बने, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता है. बट डे 2 पे जो बॉट्स थे वो हमें पता चल गए. इट इज 20 बॉट्स हियर, 27 हियर, 36 हियर एंड 50 हियर. ओके, देन अगेन डे 3 भी आ गया. ओके, he initially deleted all the bots. Okay, now he deleted the bots that were cloned only from the section they were originally designed to work on. Now अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है. अगर आपका मतलब कमांड नहीं है लैंग्वेज पे तो यू माइट फेल्ट कि दिस इज अ टफ वन. यहाँ क्या रहा है समझो इसे. ओके, बिफोर यू सॉल्व दिस लेट्स फाइंड आउट क्लोन वाले क्लोन बॉट कैसे निकालना है. सो लेट्स फाइंड आउट क्लोन बिकॉज आई वुड बेटर टू सॉल्व अहेड. मुझे अच्छा लगता है कि क्लोन निकाल लो. सो हियर आई कुड राइट द क्लोन बॉट. ओके, जो क्लोन थे यहाँ पे लिख लेते हैं हम. सो डे 2 पे जो क्लोन बने थे, राइट? तो क्लोन यहाँ पे जो लिखे रहेगा. सो सिंपली एज यू कैन सी, जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, द 10 बॉट का जो इंक्रीज हुआ है, ये बॉट कहाँ से आए होंगे? ऑब्वियसली ये तीनों के जो क्लोन बने होंगे वही यहाँ पे ऐड हुए होंगे, राइट? तो अगर मैंने एस में से लेट्स से फ्रॉम एस इफ आई लेट्स से एस में से मैंने एस बॉट को क्लोन किया, एस नंबर ऑफ बॉट्स को क्लोन किया, दीज आर द नंबर ऑफ बॉट्स. ओके, अच्छा चलो और अच्छे से करवाता हूँ मैं कहीं पे, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. अगर नहीं समझा तो लेट मी राइट इट हियर. तो अगर एस की अगर मैं बात करूँ तो एस नंबर ऑफ एस में से जो नंबर ऑफ बॉट्स हुए थे, नंबर ऑफ बॉट्स क्लोन. ओके, बॉट्स है व्हाट बोट्स, बॉट्स क्लोन्ड.
सो नंबर ऑफ बॉट जितने क्लोन हुए थे, तो लेट्स से एस में से अगर ए बॉट क्लोन किया हमने, सिमिलरली एल में से हमने बी नंबर ऑफ बॉट्स को क्लोन किया था, एच में से हमने सी नंबर ऑफ बॉट्स को क्लोन किया था, एंड ई में से हमने डी नंबर ऑफ बॉट्स को क्लोन किया था। तो इन पेपर में एस एल एच ई ही लेता, ठीक है, बट यहाँ पे आपके लिए, आपको समझाने के लिए एबीसीडी ले लिया बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो। तो व्हाट इज द एबीसीडी, एग्जैक्टली क्या है एबीसीडी? एबीसीडी नंबर ऑफ बॉट्स जो हमने क्लोन किया। जैसे मैंने आपको बताया था, लेट्स से एस में से मैंने 3 बॉट को के क्लोन बनाए, ठीक है, अगर मैंने 3 बॉट से क्लोन बनाया, लेट्स से द बॉट्स आर, कुछ नाम होगा उनका, मेरा ही नाम लिख लो, ठीक है, एक बॉट का नाम था सुमित, सेकंड बॉट आई वुड से मिस्टर एक्स, एंड थर्ड बॉट वॉट मिस्टर वाई, ठीक है, ऐसे कुछ ले लो। तो इनके जो क्लोन बनाए गए थे, ये बॉट्स के नेम हैं, इनके क्लोन बनाए थे, तो सुमित के सुमित डैश डैश बने होंगे, 3 क्लोन इसके बने होंगे। तो यहाँ पे ए वॉट इज रिप्रेजेंटिंग ए रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि एस के जो नंबर ऑफ बॉट्स, लेट से 3 बॉट्स थे, सुमित, मिस्टर एक्स एंड वाई, तो इन लोग के जो 3 नंबर ऑफ बॉट्स है, द 3 नंबर विल रिप्रेजेंट बाय ए, राइट? मतलब कि एस में से जो 3 बॉट्स थे, सुमित, मिस्टर एक्स एंड वाई, इन तीनों बॉट का जो क्लोन बना था, वही नंबर एक रिप्रेजेंट कर रहा है ए। ओके, सो अब कितने बॉट्स बने? एज आई टोल्ड यू कि मुझे इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, तो आई वुड सिंपली मेक 3 टाइम्स ऑफ दिस बॉट, मतलब इसके मैं 3 बॉट्स क्लोन बनाए होंगे, राइट? तो वो आपके समझ, आई होप वो तो समझ गया होगा आपको। सो लेट्स सी दिस, इफ वी गो अहेड, तो यहाँ गिवन क्या है ना, जो डिफरेंस आया 10 का, एज आई टोल्ड यू, जो डिफरेंस 10 का आ रहा है वो कहाँ से आया होगा? ऑब्वियसली इनके जो क्लोन बॉट बने उसका ये डिफरेंस है वो। तो आई वुड सिंपली से बी प्लस सी प्लस डी, इनकी जो वैल्यू है 10 होनी चाहिए इस केस में, मतलब बी से जो बॉट बने थे और सी से जो, बी से जो यहाँ के कुछ बॉट से जो यहाँ पे ऐड किए हमने, इसमें से जो बॉट बनाए तो यहाँ पे ऐड किए, यहाँ से जो बॉट बनाए तो उसको यहाँ ऐड किए, तो बी प्लस सी प्लस डी, दैट विल बी इक्वल टू 10। ओके, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट अनदर केस, दिस वन, इसकी जब मैं बात कर रहा हूँ, नाउ इन दिस केस यू कैन सी 7 का इंक्रीमेंट है, राइट? 20 था, 27 हो गया, मतलब 7 जो एक्स्ट्रा जो बॉड ये जो बने हैं, ये कहाँ से बने होंगे? तो बिकॉज एल की बात करें तो बी तो उसमें ऐड नहीं किया होगा, ऑब्वियस बात है, बी तो ऑलरेडी वहां पे है ही, तो उसकी नीड भी नहीं है, तो क्या ऐड हुआ होगा? ए सी डी, तो ए प्लस सी प्लस डी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7। सिमिलरली नेक्स्ट केस द वैल्यू शुड बी, आई वुड से ए प्लस b plus d, it is equal to 6. In the next case, that is a plus b plus c is equal to 10. Now you can see यहाँ पे जो है the value for a is, it is 3 टाइम a आ गया, यहाँ पे 3 टाइम b आ रहा है, when 3 टाइम c 3 टाइम d, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, if I add all these 4 equations, so what I will get a plus b plus c plus d, and 3 time of this value is equal to sum of these 20 and 20 and 13, that is 33. So I will get a plus b plus c plus d, this value is equal to 11. Now a plus b plus c plus d is equal to 11, ये हमें मिल चुका है, तो you can see b plus c plus d, the value for this is 10. तो अगर इसकी वैल्यू 10 है, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? If I compare these two equation or use these two equation, I will get the value for a is equal to 1. So from here what I got, that is a is equal to 1. If I compare these two equation or solve using these two equation, और इन सिंपल यू कैन से a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अगर मैं 7 पुट कर दूं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएंगी? b की वैल्यू 4 आ जाएंगी। Similarly, I will get the value for c is nothing but that is 5, and value for d is यहाँ से 10 में तो 1. So these are the number of bots, मतलब s में से एक जो bot था उसके हमने 3 क्लोन्स बनाए, we made 3 क्लोन्स ओके ऑफ दिस बॉट, और इसके जो बॉट्स जो भी क्लोन बने थे उसे हमने क्या किए, उसे हमने एल एच और ई में डाले। सिमिलरली हमने 4 बॉट्स, बी के ऐसे 4 बॉट्स थे जिसके हमने 3 क्लोन बनाए, इन तीनों को इन 3 सेक्शंस में हमने ऐड कर दिया। सो होप यू गॉट इट। थोड़ा सा देखो, आई वोंट से इट इज़ अ वेरी इजी सेट, लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज नहीं समझोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हमने कितने बॉट्स को क्लोन किया? तो एस सेक्शन से हमने एक बॉट को क्लोन किया,
एल सेक्शन से हमने 4 बॉट को क्लोन किया, एच सेक्शन से हमने 5 बॉट को क्लोन किया, ई सेक्शन से हमने 1 बॉट को क्लोन किया। नाउ आप ये मत सोचना कि 40 + 1 50 हो रहा है, नो, आई एम सेइंग कि ई से हमने 1 बॉट को जो क्लोन किया है, इसके 3 क्लोन बने थे जो कि इन 3 सेक्शन में। गॉट इट? सिमिलरली हियर एच के 5 बॉट्स थे जिसके हमने 3 क्लोन किए, मतलब 5 × 3 15, और 15 बॉट्स कहाँ पे डिवाइड हुए? 15 बॉट्स आर डिवाइडेड इक्वली इन दिस 3 लाइक अ सेक्शन। होप यू गॉट इट। चलो फिर आगे जाते हैं, देखते क्या है आगे क्वेश्चन। आई थिंक कुछ क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड होंगे, लेट्स सी। अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है। एंड रिमेंबर, आपको पूरे सेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आपको नहीं आ रहा पूरा, नो इशू, जितना बन रहा है उतने मार्क करके आगे बढ़ो। नंबर ऑफ बॉट्स क्लोन्ड of how many of the 4 section on day 1 as well as day 2 will be uniquely determined. So day 1 तो सारे मिल गए, day 2 का हमें नहीं पता, so wait for this, day 2 निकालेंगे उसके बाद देखेंगे। How many bots on history were deleted on day 3? Okay, day 3 में कितने डिलीट हुए हैं तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। लेट्स सी। How many copies of bots cloned were created on day 2? Now see this, कितने कॉपी हमने बॉट्स के बनाए थे, तो बॉट्स के कितने कॉपी बनाए थे। सो एज आई टोल्ड यू, ये 11 बॉट्स है, दीज आर दी 11 बॉट्स। इसके हमने हर एक के 3-3 कॉपी बनाए, इट मीन्स वी क्रिएटेड 33 बॉट्स। सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज 33। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ क्लोन बॉट्स वर क्रिएटेड ऑन डे 3? नो आइडिया, अभी तो हमने सॉल्व भी नहीं किया। ओके, नाउ हियर आल्सो डे 2 टू डे 3 देखना है, ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते हम। सो लेट्स सी, लेट्स रीड फर्दर व्हाट इट इज गिवन। At the beginning of day 3, he initially deleted all bots that were cloned only from the section they were originally designed to work on. Now, अब जब मैंने पहले से रीड किया था ना फर्स्ट टाइम, व्हाट आई थॉट कि जो 33 बॉट्स है उसको डिलीट किया होगा। तो अगर 33 को डिलीट किया होगा तो नेक्स्ट टाइम उसने बहुत ज्यादा क्लोन बनाए होंगे। Okay, because it is given, you can see here when you read further, after that he cloned a few bots from one section to the remaining 3 sections, similarly to what he did at the beginning of the previous day. मतलब यहाँ पे जो किया था सेम चीज यहाँ भी किया है। After that the number of bots employed to deal with science, language, history, economic, this is this number. तो शायद से अगर आप कंफ्यूज हो गए हो यहाँ पे, डे 3 में जो बॉट्स बने हैं दैट इज 31, 31, 46, 62। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रहा था तो व्हाट आई डिड, आई थॉट ये जो 20 बॉट में यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा जो दिख रहे हैं ना उसको डिलीट किया होगा। बट अगर वो उसे डिलीट करेगा तो सेट इजी नहीं हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिकली मैंने सोचा यार इतना इजी तो कोई बना नहीं सकता है, एंड वैसे भी आंसर्स मेरे यहाँ दिख नहीं रहे थे। सो व्हाट आई डिड, आई रीड इट केयरफुली। व्हेन आई रीड इट केयरफुली, जब आप इसे सही से पढ़ोगे अच्छे से ध्यान से, लेट मी जूम इट, होप इट इज क्लियरली विजिबल। He initially deleted all the bots that were cloned, जो उसने क्लोन किया था उन बॉट्स को, नॉट क्लोन बॉट, क्लोन वाले को नहीं, जिसका क्लोन बनाया था उसको उसने डिलीट किया। किस सेक्शन से? जहां पे वो था ओरिजिनली डिजाइन टू वर्क ऑन, जहां पे वो डिजाइन किया था, बनाया गया था उस वहां काम करने के लिए, वहां से उसे डिलीट किया है। सो might be this like explanation will go very long, ठीक है, थोड़ा लंबा चला जाएगा तो आप 2x पे देख सकते हो, बट यहाँ समझो, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या रहा है, मतलब अगर एस सेक्शन से उसने एक बॉट को जो क्लोन किया था, यू कैन सी एस सेक्शन से जो एक बॉट था जिसका उसने क्लोन बनाया था, इस एक बॉट को उसने डिलीट किया इस सेक्शन से, ना कि क्लोन वाले बॉट को डिलीट किया बाकी सेक्शन से। होप यू गॉट इट। तो एल से क्या डिलीट किया होगा? एल से ये 4 बॉट डिलीट कर दिया होगा। सिमिलरली एस से ये 5 बॉट डिलीट कर दिया होगा, और ई से ये 1 बॉट डिलीट किया होगा। समझ रहे हो? नाउ सी दिस, अब ये किया उसने, डिलीट अगर कर दिया, तो अगर डिलीट करने के बाद व्हाट लेफ्ट, अगर इसे डिलीट कर दे अगर हम, तो कितना बचा होगा उसके पास। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन दे दूँ, चलो ठीक है यहाँ दे देते हैं। तो डिलीट करने के बाद आफ्टर डिलीट यहाँ में लिख दे रहा हूँ, आफ्टर डिलीट। ओके, डिलीट करने के बाद जो था यहाँ पे 20 बॉट्स थे, अगर 20 में से मतलब टोटल तो 20 हो गए थे डे 2 पे। नाउ ये वन डिलीटेड, दिस वन बॉट इज डिलीटेड, टू व्हाट लेफ्ट, दैट इज 19 बॉट्स। सिमिलरली यहाँ से 4 डिलीट कर दिया, व्हाट लेफ्ट, दैट इज 23 बॉट्स। यहाँ से 5 कर दिया तो व्हाट लेफ्ट, दैट इज 31 बॉट्स। यहाँ से अगेन कितना डिलीट कर दिया उसने, दैट से 49 बॉट्स बचे। ठीक है,
अब क्या निकालना है मुझे? अब उसने यहाँ पे फिर से क्लोन किया था, एज ही टोल्ड कि यहाँ पे भी क्लोन किया है, ठीक है। डे 3 पे भी उसने फिर से क्लोन किया था। अब यहाँ पे जब क्लोन किया उसने, तो अगेन सेम पैटर्न, यू हैव टू यूज सेम मेथड। क्या करना है क्लोन के लिए? दिस इज द अप्रोच, यू नो। तो अगर यही अप्रोच है तो लेट मी राइट इट हियर। इसे पहले मिटा दो, चलो। ओके, अगेन मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, फिर से अज्यूम कर रहा हूँ कि दैट शुड बी द ए बी सी डी बॉट ही क्लोन। ओके, द सेम पैटर्न, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट अपना है। लेट्स सी। तो यहाँ पे 19 बॉट्स थे, टोटल कितने बन गए? 31। तो 31 कैसे, ये चेंजेस कहाँ से आए होंगे? ऑब्वियस सी बात है, बी प्लस सी प्लस डी जो ऐड हुआ है उससे चेंजेस हुआ होगा। तो ये चेंजेस जो है दैट इज 12 का चेंज। सो द वैल्यू फॉर दिस इज 12। सिमिलरली फ्रॉम हियर 23 minus, so 31 minus 23. So here what he will get 8 bot here. In this case the bots were around 15. In this case the bots were around 13. Am I right? Yes, it is 13. So यहाँ पे 13 bots थे. Now simply if I add all these, what I will get? 3 times of this value, that is a plus b plus c plus d. This value is nothing but 12, 8, 20, 20, and this value is 28, that is 48. So a plus b plus c plus d. This value will become, it is 3 times 3 1 are 3, 3 6 are 18, तो 16. तो अब सेम कंपेयर कर लो यार, b प्लस c प्लस d की वैल्यू जब 12 है, तो यहाँ पे अगर पुट कर दोगे इसकी जगह, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? यू विल गेट द वैल्यू फॉर a इज 4। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, द वैल्यू फॉर a इज 4। नाउ इन दिस केस जब आप इसे यहाँ पे देखोगे a प्लस सी प्लस डी, यहाँ सबको b मिल जाएगा अगर आप a प्लस सी प्लस डी करोगे तो। अगेन द वैल्यू इज 8। यहाँ पे ए बी डी, जब आप ये 15 यहाँ पुट करोगे तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएंगे, दैट इज 1। सिमिलरली 13 जब आप पुट करोगे तो आपको ई की वैल्यू मिल जाएंगे, दैट, और यू कैन से डी की वैल्यू मिल जाएंगे, दैट इज 3। ओके, मैंने शायद यहाँ पे डी बोला तो सी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी गॉट। सो यस, वी आर डन द सेट आई गेस। लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो या वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द क्लोन बॉट्स वर क्रिएटेड ऑन डे 3? तो कॉपीज कितने थे? तो 16, 16 into 3, that is 48 bots. कितने कॉपी क्रिएट किए थे? That is 48 copies. And the first question is the number of bots cloned on, of how many bots of the 4 section on the day 1 as well as day 2 will be uniquely determined. Day 1 day 2 के जो bots है वो जो क्लोन किए थे, यूनिकली डिटरमाइन हम कर पाए कितने सेक्शंस का? तो हमने इसमें चारों का कर लिया, यहाँ पे भी चारों का, तो ऑल 4। तो आंसर इज 4। हाउ मेनी बॉट्स ऑन हिस्ट्री वर डिलीटेड ऑन डे 3? हिस्ट्री के बॉट डे 3 को जो डिलीट किया, देखो हिस्ट्री ये है, हमने डिलीट कितना किया? डे 3। डे 3 मतलब स्टार्टिंग में डिलीट किया, कौन से बॉट्स डिलीट किया? दीज आर दी बॉट्स जिसे हमने डिलीट कर दिया, ये वो बॉट्स जिसे हमने डिलीट किया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। ओके, लेट इट बी। So it is given that the ratio of the number of bots on language cloned on day 2, लैंग्वेज की बात करें, एल की बात करें, that is day 2 to day 3। डे 2 पे देख सकते हो 4 क्लोन है, यहाँ पे 8, that is 4:8, this is nothing but 1:2। so option B is the answer। hope you got this set। थोड़ा सा आई वुड से डिफिकल्ट साइड पे था ये, आई वोंट से इट इज इजी, लैंग्वेज का गेम भी है यहाँ पे, शायद आप फर्स्ट गो में सॉल्व ना कर पाओ, बट आई वुड रिकमेंड यू, अगर आपको अब समझ गया है तो एक बार खुद से ट्राई करो, बिकॉज सिर्फ सॉल्यूशन देख के कुछ फायदा नहीं है। एक बार आप ट्राई करोगे देन आपको समझ आए कि यस व्हाट यू शुड हैव टू अप्रोच इन एक्चुअल एग्जाम, अगर ऐसा कुछ सेट आ गया तो। ऑल्सो रीड केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग का, दैट्स वाई हमें वी आर सेक्शन पे भी थोड़ा कमांड बनाना चाहिए, ठीक है। तो रीड अच्छे से करो, ये जो था यहाँ पे पॉइंट, ये बहुत दिक्कत दे रहा था। आई सीन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर, बिकॉज इट इज फ्रॉम लास्ट ईयर आई थिंक मॉक, तो बहुत लोग से बना नहीं था। लेट्स सी, आप लोग बना लिए हो तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। सो या, हैव अ गुड डे, जय सिया राम, सी यू इन द नेक्स्ट सेट।